Children, today I'm going to start the new chapter, that is biodiversity. Now, first of all, we are going to discuss what is biodiversity. Biodiversity. Diversity का मतलब, what do you understand by diversity? Diversity means variety and bio means life. This means that variety of life, variety of living organisms present on this earth. It can be plants, it can be animals, it can be anything, all the living organisms. So, biological diversity or biodiversity is the term which we use to describe variety of life on earth. It refers to the variety of living organisms, plants, animals, their habitat, their genes, and even their ecosystems. Means the places in which they are living. Now, what do you understand by ecosystem? Ecosystem is the interaction of the living and the non-living things. We can say that plants are dependent on sunlight, water, and soil for preparing their food. So these sunlight, soil, water, all these are non-living things, whereas plants are living. And then herbivores are dependent on plants for their food. So this is how the living and the non-living things are connected, and this forms an ecosystem. Now here in this picture you can see the variety of organisms. Very few varieties are shown, but all the living organisms forms the biodiversity. Biodiversity can be divided into three kinds: species biodiversity, ecosystem biodiversity, and genetic biodiversity. Let's start with species biodiversity. Now, what is a species? Species is the basic unit of classification of organisms, in which group of similar organisms are capable of interbreeding. They are similar kind of organisms and they can interbreed among themselves. It refers to the different species present on the earth, like cats, dogs, human beings. All these are species. Plants. So these are the species biodiversity. Take a look at this picture. You can see various species: snakes, tiger, bird is there, chimpanzee is there, then flowers are there, frogs are there. So all these are varieties, or we can say different kinds of species. Now moving on to the ecosystem biodiversity. This ecosystem biodiversity refers to different kinds of ecosystem found on the earth within a geographical location, and its overall impact on human existence and the environment. Means different ecosystems found on the earth. Let us see the various ecosystems. You can see a marine. So this is marine ecosystem. Here tropical rainforest, this means tropical rainforest ecosystem. Desert ecosystem. Now ecosystem, marine ecosystem or aquatic ecosystem means marine organisms are present along with the non-living factors present there. That forms an ecosystem, the interaction between the living organisms along with the non-living things. Now moving on to the genetic biodiversity. Individuals of same species differ from each other. Like, let us take an example of human beings. When you sit in a class, you can observe that every individual is different from one another. Different in the features like height, complexion, etc. So all these differences are due to the variations in the genes. So genetic diversity is the variation of genes within species. Now you can see this picture. All are dogs, but the difference, you can see the difference in the genes. So that is what we call it as genetic biodiversity. Now let me explain this again to you. Biodiversity दो वर्ड का बना हुआ है, एक है बायो और दूसरा है डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी और बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें अगर हम, तो प्लांट्स और एनिमल्स सब मिलाकर के लिविंग क्रिएचर्स हो गए. अब प्लांट्स में भी आप हर तरीके के ट्रीज़ देखते हैं, मैंगो ट्री, नीम ट्री, बनियन ट्री, और वैरायटी एल्गी भी है, उसी में लिवरवर्ट्स हैं, हॉर्नवर्ट्स हैं, मॉसेस हैं, ये सब है. और एनिमल्स में भी आप एक इंसेक्ट भी देखते हैं, मस्किटो भी देख रहे हैं,
उसके साथ साथ एलिफेंट भी देख रहे हैं, ह्यूमन बींग्स भी देख रहे हैं। तो ये सब क्या है? वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है इट रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, वो किस हैबिटेट में रह रहे हैं, उनके जीन्स क्या हैं। क्योंकि हमें, अगर हम एलिफेंट की भी बात करें तो सारे एलिफेंट्स के फीचर्स अलग अलग होंगे, तो उनमें जीन्स में भी डिफरेंस है। और इवन हम ये भी बात करते हैं इकोसिस्टम्स की, जैसे कुछ एनिमल्स ऐसा हो सकता है कि पानी में रहते हैं, कुछ फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, तो उनका जो एरिया है जहाँ वो रह रहे हैं, उनका जो हैबिटेट है, उनका जो इकोसिस्टम है, उसमें भी डिफरेंस है। अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी को फर्दर हम कितने में क्लासिफाई कर सकते हैं। स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी हो सकती है, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी हो सकती है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी हो सकती है। स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी का मतलब है, स्पीशीज़ के बारे में पहले बात करेंगे। स्पीशीज़ जो है वो क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट होती है। इसमें सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स एक स्पीशीज़ है और इसमें सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। चाहे कोई ह्यूमन अमेरिका में रहे, चाहे चाइना में रहे, चाहे किसी और कंट्री में रहे, हैं सब क्या? ह्यूमन बींग्स। अपीयरेंस थोड़ा डिफरेंट होगा। आप एक चाइनीज़ को पहचान सकते हैं कि हाँ ये चाइनीज़ है। अमेरिकन्स या थोड़ा फॉरेनर्स का लुक थोड़ा अलग होता है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फीचर्स। लेकिन एवरी इंडिविजुअल इज़ होमो सेपियंस, सारे के सारे ह्यूमन बींग्स हैं। तो वो क्या है? एक स्पीशीज़ है एंड वी आर केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग अमंग आवरसेल्व्स, वी कैन इंटरब्रीड अमंग आवरसेल्व्स। तो ये क्या है? स्पीशीज़ है। तो स्पीशीज़ की बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। कैट एक स्पीशीज़ है, डॉग्स एक स्पीशीज़ है, ह्यूमन बींग्स एक स्पीशीज़ है, एलिफेंट एक स्पीशीज़ है। तो ये क्या है? स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी। अब अगर हम इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम जो है अर्थ में प्रेजेंट होते हैं किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन में, और उसका एक इम्पैक्ट भी होता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर और एनवायरनमेंट पर भी। यहाँ पर इस पिक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम दिए हुए हैं। मरीन इकोसिस्टम है, टाइगर एक इकोसिस्टम हो गया, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो गया, फ्रेश वाटर में अलग टाइप के एनिमल्स रहते हैं, मरीन एरिया में अलग तरह के रहते हैं, फॉरेस्ट में डिफरेंट रहते हैं। तो वो क्या है? एक इकोसिस्टम है। तो ये इकोसिस्टम की वैरायटी हुई। उसके बाद अगर हम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो सेम स्पीशीज़ में भी आपको अलग अलग इंडिविजुअल्स दिखते हैं। जैसे कि आप हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड मदर हो गए या आपके ब्रदर सिस्टर हो गए, तो ये सब क्या है? सबके कैरेक्टर्स, फीचर्स जो है डिफरेंट है। यू आर नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर ना। आप स्कूल आते हैं, आपके बैचमेट्स हैं, सब अलग दिखते हैं। किसी के हेयर्स डिफरेंट टाइप के हैं, किसी का कॉम्प्लेक्शन अलग है, किसी के आइज़ दूसरी तरीके के हैं। तो ये सब क्या है? इनके जीन्स में वेरिएशन है। जीन्स सबके अलग अलग टाइप के हैं, इसलिए हम अलग दिखते हैं। तो ये किस तरह की डाइवर्सिटी हो जाती है? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर इस पिक्चर में डॉग्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है, वेराइटी ऑफ डॉग्स देख रहे हैं। और ये क्या है? एक स्पीशीज़ है लेकिन जीन्स में डिफरेंस है। तो ये हो गया हमारा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। सो इस वीडियो में हम लोगों ने 3 चीज़ें डिस्कस की, स्पीशीज़, जेनेटिक और इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। थैंक यू।